کراچی سے لاہور جانے والے طیارے کا دوران پرواز انجن نمبر 2 خراب۔ سیرین ایئر کی پرواز نواب شاہ سے گزر رہی تھی کہ خرابی پیدا ہوئی۔ سیرین ایئر کی پرواز R522 نے 25 منٹ کا سفر طے کیا تھا۔ ناظرین، آپ کو بہت بڑی خبر سے اپڈیٹ کریں کہ کراچی سے لاہور جانے والے طیاروں کا دوران پرواز ایئر کی پرواز نواب شاہ سے گزر رہی تھی کہ خرابی پیدا ہوئی۔ سیرین ایئر کی پرواز R522 نے 25 منٹ کا سفر طے کیا تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار سے۔ جی شعیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی سے لاہور جانے والی سیرین ایئر کے طیارے میں جو ہے وہ اچانک بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ پرواز نے 25 منٹ کا سفر جو ہے وہ طے کیا تھا تو اچانک خرابی ہوئی۔ سیرین ایئر کی پرواز نواب شاہ سے گزر رہی تھی تو طیارے میں اچانک جو ہے تکنیکی خرابی ہو گئی تھی۔ سیرین ایئر کے طیارے کے کپتان نے کراچی ایئرپورٹ پر واپس ہنگامی لینڈنگ کی اجازت طلب کی تھی۔ پرواز ER522 کے طیارے کا انجن نمبر 2 جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا۔ طیارے میں انجن خرابی کے سگنلز پر کپتان نے پرواز کو واپس کراچی ایئرپورٹ لینڈنگ کی جو ہے وہ اجازت طلب کی تھی اور کراچی ایئرپورٹ پر یہ پرواز جو ہے وہ لینڈ کر چکی ہے۔ پرواز کی فوری ہنگامی لینڈنگ کے لیے کراچی ایئرپورٹ کے رن وے 25L کو جو ہے وہ خالی کرایا گیا تھا۔ پرواز کو جو ہے بحفاظت لینڈ کروا لیا گیا ہے۔ سیرین ایئر کی پرواز میں 180 سے زائد مسافر سوار تھے۔ جی شعیب، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ کراچی کی عوام کے لیے بری خبر، شہریوں کو دسمبر کی بجلی کے بلوں میں فی یونٹ 3 روپے 3 پیسے اضافی ادا کرنے ہوں گے۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے جولائی 2024 کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج کی مد میں 3 روپے 3 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ کہ الیکٹرک یہ اضافہ دسمبر 2024 کے بلوں میں صارفین سے وصول کرے گا۔ یہ اضافہ 100 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے اشرف خان سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ بتاتا چلوں کہ نیپرا کی جانب سے بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ جو سماعت ہوئی تھی عوامی اور یہاں پہ کے الیکٹرک کے لیے جولائی 2024 کا جو FCA تھا فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج کی مد میں 3 روپے 3 پیسے فی یونٹ اضافہ کرنے کی منظوری دے دی اور جو نیپرا کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو اضافہ ہے وہ جو کے الیکٹرک دسمبر 2024 کے بلوں میں لے گی، یعنی کہ 1 مہینے کے لیے وصولی ہوگی FCA کی مد میں، اور جو FCA فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دیکھا جائے 3 روپے 3 پیسے کراچی کے عوام کے لیے مہنگی کر دی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی اس میں لائف لائن صارفین جو 50 سے 100 یونٹ کے اندر استعمال کرتے ہیں ان پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور یہاں دیکھا جائے اس کی پہلے عوامی سماعت ہوئی تھی۔ عوامی سماعت نے کے الیکٹرک نے جو جولائی 2024 میں جو بجلی کی پیداواری لاگت تھی اس کے لیے درخواست دی تھی، جس میں وہ اضافے کی انہوں نے درخواست کی تھی، تقریباً 3 روپے 14 پیسے مہنگی کرنے کی تجویز انہوں نے بھیجی تھی۔ اور یہاں پہ عوامی سماعت کے بعد نیپرا نے اب نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جو کہ جولائی 2024 کے لیے FCA کی مد میں 3 روپے 3 پیسے مہنگی کر دی گئی ہے بجلی، اور کراچی کی جو صارفین ہیں تمام صارفین کو یہ اضافہ برداشت کرنا پڑے گا جو کہ دسمبر 2024 کے بلوں میں اس کا اطلاق ہوگا۔ اس میں لائف لائن صارفین اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ جی کراچی کے شہریوں پر ایک بار پھر بجلی بم گرا دیا۔ نیپرا نے کراچی کے لیے 3 روپے پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی۔ عوام نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ کہا پانی، بجلی اور گیس تینوں ہی دستیاب نہیں، اعلانیہ کے ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندے سلمان سلیم سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا سلمان۔ دیکھیں، بالکل شہر کراچی کی بات کر لی جائے تو نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے اور نہ گیس ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے روز احتجاج جو ہے وہ شہری کر رہے ہوتے ہیں۔ اعلانیہ کے ساتھ ساتھ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور شہری کراچی کے یہ کہتے ہیں کہ ایک تو اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اپنے ٹائم کے اوپر ہوتی ہے، لیکن غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج 3 روپے 3 پیسے بھی فی یونٹ جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے بجلی کے بلوں میں۔ تاہم اس کی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ کراچی کے شہریوں کے اوپر مسلسل بجلی کے جو بل ہیں وہ تو گر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اب یہ 3 روپے فی یونٹ بھی بڑھ گئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کیسا اقدام ہے؟ یہ بھائی بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم خود کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں اور کرائے کی دکان ہے، وہاں بل بھریں یا بچوں کو کھلائیں یا راشن کریں، بس بیزار ہو چکے ہیں۔ یہ انہوں نے کے الیکٹرک نے
बर्बाद कर दिया इन्होंने। अच्छा, आप ये बताइएगा, आप भी कराची के रहायशी हैं, लियाकताबाद के रहायशी हैं, लियाकताबाद में बिजली की क्या सूरत हाल है? लियाकताबाद में बिजली की बड़ी बुरी सूरत हाल है, क्योंकि लोड शेडिंग जो ये जारी है 2-2 3-3 घंटे, उसके बावजूद भी लोड शेडिंग और हो रही है, और पानी के भी मसले मसाइल बहुत हैं, और बिल जो है अभी 3 रुपये 4 रुपये यूनिट बढ़ गए, दिसंबर से बिल और बढ़कर आएगा, ठीक है ना। और हम रेंट पे रह रहे हैं, रेंट पे हम 15,000 रुपये रेंट दे रहे हैं, ठीक है, और बिल 25,000 रुपये आ रहे हैं, 33,000 रुपये आ रहे हैं, 22,000 रुपये आ रहे हैं। बंदा कहाँ से भरेगा? कमाई इतनी नहीं है, आमदनी नहीं है। 30,000 रुपये सैलरी है, उसमें बंदा क्या करेगा? घर चलाएगा, बच्चों को देखेगा, बिल भरेगा, रेंट भरेगा, फिर और दुख तकलीफें परेशानियां हैं, और भी मसले मसाइल हैं। देखिए, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस इक़दाम को किस तरह देखते हैं। आप ये बताइएगा कि आपकी दुकान है, किराए की दुकान है, तो किस तरह देख रहे हैं? 3 रुपये दोबारा बढ़ गए हैं, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं आपके? भाई आखिरी हल तो यही है, दुकान बंद करते हैं, बच्चों को फांसी लगा देते हैं हम लोग। तो घर जितने का हमारा 12,000 रुपये रेंट किराया, 20,000 रुपये बिल भरते हैं हम लोग, राशन हमारा पूरा नहीं होता। अभी बताएं हुकूमत से हम क्या बोलें? बच्चों को मार दें जान से, अगर ये बोले तो फांसी लगा देते हैं बच्चों को। कभी पानी नहीं है, कभी बिजली नहीं है, कभी गैस नहीं है, कभी चाय क्या रहे हैं, बोले तो मारते हैं बच्चों को, सब बच्चों को अपने हम लोग। रोजाना हम देखते हैं कि एहतजाज भी हो रहे होते हैं, लियाकताबाद पे भी हो रहा होता है, डाकखाने के ऊपर भी हो रहा होता है, और मुख्तलिफ कराची के इलाकों में। तो एहतजाज से क्या फ़ायदा होता है? मुझे तो कुछ लगता नहीं है, कुछ बेचारे आते हैं रोडों पे, आते हैं हम लोग, फिर बात करते हैं, आते हैं मारते हैं हमारे को, फिर भाग जाते हैं अंदर। अब बताएं क्या करेंगे इनके लिए? हुकूमत क्या चाह रही है बता दें, एकदम जो चाह रही है बता दें। भाई बोले मार दें बच्चों को, जब फांसी लगा दें, कर दें, मार दें बच्चों को, अपने आप को भी लगा लेंगे फांसी। इतना रेंट नहीं है हमारा, इतना हमारा बिल आता है। अभी पिछले महीने का बिल आपका कितना है दुकान का? मेरा दुकान का 25,000 रुपये बिल आया था, इतना किराया भी नहीं मेरी दुकान का। तो अब पता देखिए, बिल्कुल कराची के शहरियों की आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी है, और मुस्तरद करते हैं इस फैसले को। कराची के शहरी कहते हैं कि दुकानों का इतना किराया नहीं है, घरों का इतना किराया नहीं है जितने बिल आ रहे हैं, और उसके बाद इस तरह हुकूमत की जानिब से हर 1 महीने 2 महीने के बाद बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया जाता है, कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जो कि यकीनी तौर के ऊपर कराची के शहरियों का मुआशी कत्लेआम जो है। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम हमें आगाह कर रहे थे। सलमान, आप हमारे साथ रहिएगा। नेपरा का के इलेक्ट्रिक सार्फिन को एक और झटका, बिजली 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। कारोबारी सार्फिन का कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं बिजली सारा दिन गायब रहती है, लेकिन कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मजीद नुमाइंदा नमरा रासत से जी। बिल्कुल जी, नेपरा ने कराची वालों को एक और ज़ोरदार झटका दिया है कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की रीटेक 3 रुपये 3 पैसे है ना। जी, आपको अपडेट करें कि नेपरा का के इलेक्ट्रिक सार्फिन को एक और झटका, बिजली 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। कारोबारी सार्फिन का कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं बिजली सारा दिन गायब रहती है। हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, हालात जो है वो अब मजीद बदतर होते जा रहे हैं। जो कराची के शहरी हैं वो इसको मुस्तरद करते हैं, और उनका कहना है कि दुकानों के साथ साथ घरों का किराया में बिजली के बिल आ रहे हैं, और रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली के साथ साथ अगर हम पानी की बात करें तो पानी भी कराची के शहरियों के लिए मौजूद नहीं है। कि मसाइल हम देखते हैं कि ना जो शहरी हैं वो कई एहतजाज कर रहे हो पानी बिजली गैस के खिलाफ, लेकिन अभी सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई कराची के शहरियों की नहीं हो रही है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर कराची के मुख्तलिफ के ऊपर पानी बिजली गैस के अदम एहतजाज जो है वो किया रहा होता है, और पुलिस मौके के ऊपर पहुंचती है और शहरियों से उनको यकीन दिलाती है कि उनके मुतालबात जो है वो मंजूर कर लिए जाएंगे, लेकिन कुछ देर के लिए बिजली के इलेक्ट्रिक यूनिट से उस इलाके की खोली जाती है, और उसके बाद दोबारा लाइट वो बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से उसके बाद दोबारा से एहतजाज वो शहरी करते दिखाई देते हैं। ताहम कराची के बासियों की हम बात करें तो देखें, अगर हम लोग इन्फ्लेशन रेट देखें तो वैसे ही महंगाई बहुत ज़्यादा
है। जो कराची के शहरियों की आमदनी है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो कोई के इलेक्ट्रिक सार्फिन को एक और झट बिजली 3 रुपए पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। सलमान, आप हमारे साथ रहिए। कराची के शहरियों पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 3 रुपए 3 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। अवाम ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, पानी, बिजली और गैस तीनों ही दस्तयाब नहीं। एलानिया के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है। हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अपडेट कीजिएगा। देखिए, शहर की अगर हम बात करें सूरत हाल की तो ना पानी है, ना बिजली और ना गैस है, जिसकी वजह से कराची के शहरियों का वैसे ही पारा हाई है। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर एहतजाज का सिलसिला जारी है, जबकि दोबारा से अब बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से कुछ शहरियों से हमारी बात भी हुई है। उनका कहना है कि 15,000 रुपये घर का रेंट है और 20 से 25,000 रुपये बिजली का बिल आता है, जिसकी वजह से गुजारा करना काफ़ी मुश्किल है। और कराची के अगर हम मज़ाफ़ाती इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी बिजली के जो है वो काफ़ी मसाइल हम देखते हैं कि है, और साथ ही साथ गैस और पानी की अदम फराहमी की वजह से भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है शहरियों को। तमाम 3 रुपये 3 पैसे बढ़ाने से यकीनी तौर के ऊपर कराची के शहरियों का जो मौशी कत्लेआम है वो देखने में आएगा। और शहरियों की जानिब से इस चीज़ को, इस जो प्राइस यूनिट बढ़ाए गए हैं, इसको मुस्तरद किया गया है और उनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर के ऊपर ये कीमतें जो है वो वापसी रिवाइज की जाएँ और पुरानी कीमतों के ऊपर बिजली के बिलों को लाया जाए, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बिजली की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी सलमान सलीम, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कराची के शहरियों पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 3 रुपए 3 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। अवाम ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, पानी, बिजली और गैस तीनों ही दस्तयाब नहीं। एलानिया के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सलमान सलीम से। जी, अपडेट कीजिएगा। देखिए, कराची के शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और जो 3 रुपये 3 पैसे दोबारा से फी यूनिट बढ़ाया गया है, इसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, चाहे वो ताजिर हों या कराची के शहरी हों। दोनों ही सूरतों में दोनों की जानिब से इस फैसले को मुस्तरद किया गया है और कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे एलानिया के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो एहतजाज हैं वो किए जाते हैं और काफ़ी मुश्किलात हैं शहरियों को, और शहरियों का कहना है कि बिजली के बिलों को रिवाइज़ किया जाए, जो कीमतें हैं जो बढ़ाई हैं उनको जो है वो दोबारा से रिवाइज़ किया जाए और फौरी तौर के ऊपर इस फैसले को जो है वो वापस लिया जाए, ताकि जो शहरी हैं वो सुख का सांस ले सकें। कराची में एक तो वैसे ही बिजली नहीं है और दूसरी जानिब कराची के जो शहरी हैं उनकी जानिब से काफ़ी इस मामले के ऊपर एहतजाज भी किया जाता है। अब से कुछ देर कबल भी मार्टन रोड के ऊपर एक एहतजाज हुआ जिसके अंदर पानी, बिजली और गैस के हवाले से काफ़ी जो है वो एहतजाज किया गया शहरियों की जानिब से, लेकिन पुलिस मौके के ऊपर पहुंची और पुलिस ने जो इलाका मकीन है उनको यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल के हल के लिए आगे बात की जाएगी। ताहम इस यकीन दहानी के ऊपर उनकी जानिब से जो एहतजाज है वो ख़त्म किया गया, लेकिन हम ये देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये एहतजाज होते हैं और जो ज़िला इंतज़ामिया है उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आता, के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आता, जिसकी वजह से कराची की जो शहरी है वो शदीद परेशानी में मुब्तला है। जी सलमान, ये बताइएगा कि कीमतें रिवाइज होने के कितने चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं? कीमतें हमेशा की तरह बढ़ती हैं और बढ़ती चली जाती हैं, कीमतें जो है वो रिवाइज नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले 200 यूनिट का जो बिल है वो 5,000 6,000 रुपये आता था और अब यूनिट के जब से प्राइस बढ़े हैं उसके बाद 12,000 15,000 रुपये जो है वो बिजली के बिल आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अगर हम लोग लियाकताबाद वगैरह की बात करें तो लियाकताबाद में
12,000 से 15,000 रुपये जो है वो किराए के ऊपर मकान मिलता है। और जो शहरी हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उनका कहना है कि 15,000 रुपये वाले मकान के अंदर 25,000 रुपये का बिल आना यकीनी तौर के ऊपर मुआशी कत्लेआम है। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप ये बताइएगा, आप भी कराची के रिहायशी हैं, 3 रुपये फी यूनिट दोबारा बिजली के बिल फी यूनिट बढ़ चुका है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? भाई हमारे पास तो अब कोई हल रह ही नहीं गया, ठीक है ना। अब हम लोग खुदकुशी कर ले, अपने बच्चों को लेके ना मर जाए, वही बेहतर है। इस केस ने हमारी जिंदगी इतनी बर्बाद कर दी है ना कि जिसकी हुकूमत ने कोई सपोर्ट ही नहीं रखी हुई है। क्यों? क्योंकि ये इदारा उन्हीं लोग है। हम तो परेशान है ना, घर में बिल आ रहा है 25,000 रुपये का, ठीक है ना। 1.5 लाख रुपये कुंडे का बिल लगा दिया, कुंडा शो नहीं है। आगे बोल रहे सर्वे करो, तो सर्वे भी नहीं करा जा रहा। 1 महीने से पागल बना के रखा हुआ है। कल मैंने 17,000 रुपये का बिल भरा है, ठीक है ना, एक पोर्शन का, जिसमें मेरे घर में कुछ भी नहीं है, समझ ना। टैक्स ये बताइएगा कि एहतजाज भी करते हैं, फिर भी कीमतें जो है वो रिवाइज नहीं होती, क्या वजह है इसकी? भैया मसला ये है कि जो है ना, हमारी आवाम मुत्तहिद नहीं है, ठीक है ना। आवाम मुत्तहिद हो जाए ना तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। हमारी आवाम से गुजारिश है कि वो मुत्तहिद हो जाए। अगर आवाम मुत्तहिद होती है ना तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। केस की कोई वो इतनी बड़ी नहीं है पावर रखती हुई। ये 1,000 रुपये का बिल आने वाली चीज़ थी जो आज 25,000 रुपये। कराची के शहरियों पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। सलमान, आप हमारे साथ रहिएगा। जी नमरा, रियासत से राब्ता बहाल हो गया है, जो कि इस वक्त कारोबारी सार्फिन के साथ मौजूद हैं। जी नमरा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, नेपरा की जानिब से कराची वालों को एक और ज़ोरदार झटका दिया गया है कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 3 रुपये 3 पैसा फ़ी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है। जो कारोबारी अफराद हैं और कमर्शियल सार्फिन और घरेलू सार्फिन, आम और ख़ास शख्स, हर शख्स जो है वो इससे मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। जो कारोबारी अफराद हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। बताइएगा कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, काम मुतासिर हो रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो दरख्वास्त करूँगा सबसे पहले सदर मुमलिकत पाकिस्तान से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि ये जो इलेक्ट्रिक का मसला है, इसमें चाहे कारोबारी हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे मजदूर हो, इन तमाम लोगों को इसने जहनी मरीज़ बना दिया है। इस हवाले से कि इतनी महंगी बिजली और उस बिजली के बावजूद बिल उसके इतने ज़्यादा और वो आती भी नहीं है। यानी कि अगर कारोबार आदमी करेगा कैसे? दिन में 1 घंटा लाइट आती है, बाकी सारे टाइम लाइट चली जाती है। इससे जहनी मरीज़ होगा, ना बच्चे पढ़ सकते, ना घर के कोई मसले हल हो सकते। तो हम चाहते हैं क्यों इलेक्ट्रिक, ऐसा क्या मसला है इसका कि ये यही मुसल्लत है हमारे ऊपर। और इसके साथ साथ एक और जो झटका दिया जाता है, हर 2 से 3 माह बाद जो बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, उससे शहरी और जो है वो कारोबारी सार्फिन हैं वो बड़े परेशान नज़र आते हैं कि भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में बिजली की कीमतों में इजाफा मजीद अजियत का सबब बनता है, जिसके लिए मुताल्लिका इदारों से दरख्वास्त करते हुए दिखाई देते हैं कि इस पर कराची के शहरियों पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। अवाम ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा पानी, बिजली और गैस तीनों ही दस्तयाब नहीं। एलानिया के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है। हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम और नमरा रियासत हमारे साथ मौजूद थे। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सदर पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन सईद गनी की ज़ेर सदारत इजलास। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर यौम तशक्कुर के बाद जश्न मनाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी 28 अक्टूबर बरोज़ पीर को मज़ार क़ायद के बाहर जश्न मनाएगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, ये यहाँ पर सूबाई वज़ीर बल्दियात और पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी की सदारत में पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न का इजलास हुआ है, जिसमें तमाम अहदेदारों ने शिरकत की है, ज़ैली विंग्स के अहदेदारों ने शिरकत की है। इजलास को बताया ये गया है कि सूबाई वज़ीर ने बताया कि पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न जो है 27 अक्टूबर को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से होने वाली जो मार्च है उसमें भी शिरकत करेगी और 28 अक्टूबर को मज़ार क़ायद के सामने एक जलसा करेगी और ये 26वीं आईनी तरमीम की खुशी में ये जश्न मनाया जाएगा। जबकि पीपल्स पार्टी के कारकुनों को हिदायत की गई है कि इन दोनों सरगर्मियों में वो भरपूर हिस्सा लें। जी आजिज़ जमाली, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।
10 ہفتوں کا تربیتی کورس مکمل کرنے والے سرکاری محکموں کے افسران میں سرٹیفکیٹ تقسیم کر دیے گئے۔ وزیر تعلیم سندھ نے کہا کہ فرائض دیانتداری سے نبھانا افسر بننے سے زیادہ اہم ہے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ مختلف سرکاری محکموں کے افسران نے 10 ہفتوں کا کورس مکمل کر لیا۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں تقسیم اسناد کی تقریب منعقد ہوئی۔ مہمان خصوصی وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ نے کہا کہ صرف افسر بننا بڑی بات نہیں، افسر بن کر فرائض انجام دینا بڑی بات ہے۔ 5 سے 16 سال کے بچوں کو مفت تعلیم دینا حکومت کا فرض ہے، مگر سندھ میں 40 لاکھ بچے پیسے دے کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا ریاستی فیلیور دیکھو، ہمارا اپنا فیلیور دیکھو، ایز اے اسٹیٹ میں کہہ رہا ہوں۔ آئین کہتا ہے کہ 5 سے 16 سال کا بچہ ہر قیمت پر اسکول میں ہونا چاہیے اور فری میں ہونا چاہیے۔ 40 لاکھ تو میرے صوبے میں فقط جو بچے ہیں پیسے دے کے پڑھ رہے ہیں۔ Isn't that flagrant violation of Constitution؟ 1 کروڑ 20 لاکھ بچے تو پنجاب میں پیسے دے کے پڑھ رہے ہیں۔ 40 لاکھ اور 30 لاکھ بچے تو کے پی میں پیسے دے کے پڑھ رہے ہیں۔ I do confess it۔ میں اس کو ریپیٹیڈلی اسمبلی فلور پہ ہر جگہ میں کنفیس کرتا آیا ہوں کہ ہمیں اپنی غلطیاں تسلیم کرنی پڑیں گی۔ ڈی جی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ ڈاکٹر سیف الرحمان کا کہنا تھا کہ یہ کورس افسران کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں مثبت کردار ادا کرے گا۔ آنریبل اینڈ ریسپیکٹڈ سید سردار علی شاہ صاحب، منسٹر فار ایجوکیشن اینڈ لٹریسی، کالج ایجوکیشن، مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آف سندھ۔ تقریب کے اختتام پر 34 مڈ کیریئر افسران کو سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ ایف پی سی سی آئی قائم مقام صدر ثاقب فیاض مگوں کا بجلی سستی اور شرح سود میں 5% کمی کا مطالبہ۔ کہا مہنگی بجلی اور بلند شرح سود کے باعث کاروبار کرنا محال ہو گیا۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ کے سرپرست اعلیٰ ایس ایم تنویر نے کہا ہے کہ 50 ٹاپ کاروبار کرنے والے پر FIR درج کرنا درست نہیں۔ اشرف خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ مہنگی بجلی اور بلند شرح سود، کاروبار بڑھنے لگا مان، تاجروں کا فوری اقدامات کا مطالبہ۔ ایف پی سی سی آئی میں IPPs، شرح سود اور FBR کے اہم ایشو پر پریس کانفرنس۔ ایف پی سی سی آئی قائم مقام صدر ثاقب فیاض مگوں نے کہا کہ IPPs کا معاملہ اٹھایا، اس میں بڑی کامیابی ملی ہے، جس سے 5 IPPs کے ساتھ حکومت نے معاہدہ ختم کر دیا۔ اب مزید 18 IPPs کے ساتھ معاہدوں پر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مطالبہ ہے کہ تمام IPPs کے ساتھ معاہدے کا جائزہ لیا جائے۔ مہنگائی کی رفتار 44 ماہ کی کم ترین سطح پر آنے کے بعد نومبر میں مانیٹری پالیسی میں 5% کمی کی جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پلیز EFS کا جو بینیفٹ ہے وہ ہماری لوکل انڈسٹری کو بھی دیا جائے، اور جس طرح پہلے چل رہا تھا EFS بہت اچھی اسکیم ہے، اور اس کو اسی طرح جو اس کی اصل روح کے مطابق اس کو جو ہے وہ الاؤ کیا جائے۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ سرپرست اعلیٰ ایس ایم تنویر نے کہا کہ غلط فیصلوں کی وجہ سے عوام اور صنعت کاروں پر ٹیکسوں کا بوجھ بڑھا دیا گیا ہے۔ اب 50 ٹاپ بڑے بزنس مین پر FBR کا FIR درج کرنا ظلم ہے۔ 70 کروڑ روپے کے لیے آپ نے 50 ٹاپ ایکسپورٹرز پہ FIR کٹوا دی۔ غلط آدمی نے کول کی سپلائی کی بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو، اس پہ FIR کٹوا دی گئی۔ یار اگر کہیں مسٹیک ہوئی ہے آپ شو کوز نوٹس دیں نا۔ ایس ایم تنویر نے کہا حکومت نے بجلی کے بلوں میں نیا بوجھ ڈال دیا ہے، بجلی کے بلوں پر 10% لیٹ چارجز کو مسترد کر دیا۔ ہماری ایکچوئل ڈیمانڈ جو ہے وہ 10% کم ہونا چاہیے۔ میں جو ابھی نومبر کی مانیٹری پالیسی آ رہی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں 5% کم ہونا چاہیے ہے۔ ایف پی سی سی آئی قائم مقام صدر ثاقب فیاض مگوں نے کہا کہ زرعی آمدنی پر ٹیکس عائد ہونا چاہیے، ٹیکس نیٹ بڑھے گا تبھی ملک کے مالی مشکلات کم ہو سکیں گی۔ کیمرامین عمران AK کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ شوبز ستارے اب کھیل کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے۔ معروف اداکار اعجاز اسلم کہتے ہیں کرکٹ کا جنون سب کو ہوتا ہے، فینس اپنے سٹارز کو کھیلتا دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں راہیل بیگ سے۔ جی راہیل۔
जी इस वक्त हमारे साथ टीवी के मारूफ अदाकार इजाज असलम मौजूद हैं, जो कि अब खेल के मैदान में भी नजर आएंगे, जो कि वक्तन फवक्तन नजर आते हैं। एक सीरीज शुरू होने वाली है जिसमें तमाम 24 सितारे नजर आएंगे। इजाज भाई, किस तरह से देख रहे हैं? वैसे तो आर्टिस्ट मुख्तलिफ किरदारों में, अदाकारी में नजर आते हैं, स्पोर्ट्स का कितना लगाव होता है, जुनून होता है, और क्रिकेट मेरे ख्याल से ऐसी चीज है जिसका क्रेज सबको होता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। क्रिकेट का तो मेरे नहीं ख्याल में कोई भी, बहुत कम एक्टर्स ऐसे जो नहीं खेलते क्रिकेट, बट हम लोग तो बड़े पैशनेटली देखते भी हैं, खेलते भी हैं। और ये DCL का चैप्टर 3 होने जा रहा है। अब 2 चैप्टर्स का मैं पार्ट था और एक का बल्कि विनर भी था। हमारी टीम, कराची की टीम जो है वो जीती थी। सेकंड में हम लोग फाइनल्स में थे, रनर्स अप थे। और बड़ा मज़ा आता है। सारे एक्टर्स हमारे जो दोस्त हैं इकट्ठे हो जाते हैं और हम लोग आपस में मिलकर खेल रहे होते हैं, तो एक बड़ी बॉन्डिंग भी हो जाती है स्पोर्ट्स के साथ। और फिर लोग देखने आते हैं, वो हम लोगों को डिफरेंट रोल्स में देख रहे होते हैं। फिर जब वो क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं तो वो बहुत एंजॉय करते हैं कि यार ये लोग भी खेलते हैं क्रिकेट। सो बड़ा मज़ा आता है। और जब कोई इस तरह का बड़ा टूर्नामेंट होता है तो हम लोग बड़ी प्रैक्टिस भी करते हैं। कुछ अर्सा पहले हम लोग नेट शुरू कर देते हैं ताकि हम लोग जब खेलने जाएँ तो इंजरीज ना हो और हम लोग सही से खेलें और लोग भी एंटरटेन हों। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू थर्ड चैप्टर ऑफ DCL, और इंशाल्लाह पहले जैसे 2 बड़े हुए हैं इवेंट्स, इसी तरह ये भी होगा। बिल्कुल जी, इजाज असलम हमारे साथ मौजूद से उनका कहना है कि जिस तरह से तमाम लोगों को क्रिकेट का क्रेज होता है, उसी तरह से स्टार्स को भी क्रिकेट का क्रेज होता है। उनके फैन खुश होते हैं जब उन्हें खेल के मैदान में देखते हैं, और इसी तरह की जो सरगर्मियां हैं एक मस्बत पहलू है और इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए। जी, न्यूज़ स्टूडियो फिल वक्त के लिए इतना ही।